Before theorem, we had done the inner product spaces and the properties like continuity, triangular inequality, parallelogram inequality, Pythagoras theorem, and etc. So today we'll be doing with a theorem which is based on completeness of an Hilbert space, right? Or we will be proving that every subset of a separable inner product space is separable, right? So the theorem says that if Y be a subspace of a Hilbert space H, then Y is complete if and only if Y is closed in H. Secondly, it says that if Y is finite dimensional, then it is complete. And thirdly, it says that if the space is separable, though so is Y, right? So more generally, it would state that every subset of a separable in a product space is separable, right? So to prove the first part, what we have to take is first we'll assume that Y is closed and then prove it is complete, and then we'll prove the vice versa. So for the first part, let us assume that Y be closed in H, right? And Yn be any sequence. We have to prove that Y is complete, right? So we have to take a Cauchy sequence and prove that the sequence converges in Y. So we have assumed to be the Cauchy sequence in Y. Now, Yn is a Cauchy sequence in Y and Y is contained in H, right? Y is a subspace of H, so therefore Y is Cauchy in H, right? So therefore Yn would converge to a Y belonging to H because H was a complete Hilbert space is a complete vector space, right? So therefore Yn would converge to Y for Y belonging to H. Now we have to prove that this Y would actually be belonging to Y. Now since Yn जो है that belongs to Y and the sequence Yn converges to Y, therefore Y is the limit point of the space Y, right? And therefore this would belongs to Y closure, but Y is closed, so therefore Y closure is nothing but Y, so we have Y belongs to capital Y, and therefore the subspace Y is complete, right? So we have proved that if the subspace is closed in an Hilbert space, then it needs to be complete, right? Any doubt in this? No, ma'am. Next, let us assume that Y is complete and then we'll prove that Y is closed. So Y is closed के लिए first inequality we already know that Y is always contained in Y closure, right? So we'll take an element in Y closure and we'll show that this element belongs to Y, right? Now X belongs to Y closure. That means there would exist a sequence Xn in Y which would converge to X, right? And which would imply Xn is a Cauchy sequence, right? Complete hai. Why? Right? So Cauchy convergent sequence is Cauchy sequence, and also Y is complete. So therefore, the sequence Xn should converge in Y, right? And Xn sequence was converging to X, and therefore we have that X belongs to Y, and therefore Y is a closed subspace. So we have proved the both ways of containment, and so Y is closed, and therefore we have proved the first part that if Y is complete, that happens if and only if Y is closed. The first part is clear. Yes, ma'am. Next, we had to prove that if Y is finite dimensional, then Y is closed, right? So to prove that if Y is finite dimensional, let us assume the dimension of Y is M, right, which is less than infinity. So finite dimensional hai, so we'll have the basis even to Em, right? So let us assume that Xn be an arbitrary Cauchy sequence in Y. So हमें प्रूव क्या करना है y is complete. So complete प्रूव करने के लिए what we'll need to prove is कि xn जो है converge करेगा y में, right? So this is the same proof of in the case of norm spaces में हमने जब प्रूव किया था कि finite dimension का अगर norm space है तो उसमें वो completeness hold करेगा उसमें, right? The same case हमने प्रूव किया था, same as it is proof है. Next was we have to prove that if H is separable, then so was Y, right?
So H is we are given H is a separable Hilbert space, and we are given that Y is a subspace of H. We have to show that Y is separable. Now to show that since H is separable होने का मतलब क्या है? We would have there exists a countable set W of H such that W closure is contained in H. The definition of separable, right? Now what we say is let us assume W dash is the set W intersection Y, right? So then it would be contained in W, right? Intersection of two sets is always contained in either of the set, right? So we have that W dash is contained in W. Now, since W was countable set, we would have this intersection W dash will also be a countable set because it was a subset of a countable set, right? So W dash is a countable set, and clearly W dash is also contained in Y, right? The same statement, because intersection of two sets is contained in either of the sets. So therefore what we have is W dash is also contained in Y. We have to show that W dash का closure is nothing but Y. ठीक है? So उसके लिए what we do is, ये हमें क्यों दिखाना है? Because we have to prove that Y has also a countable subset such that the set का closure is equals to Y, right? Separable दिखाने के लिए हमें क्या करना है? Prove कि एक countable set मिल जाएगा, right? Countable subset मिल जाएगा such that उस set का closure is nothing but the set Y, right? So we have created the set W dash. We have shown that W dash is a countable set. It is contained in Y. Next, we'll prove that W dash closure is nothing but Y, right? So now W dash था क्या? W intersection Y, which implies W dash का closure would be contained in Y closure, right? And that would imply अगर X belonging to Y closure अगर हम element लेते हैं, then there would exist an Xn in Y such that this converges to X, right? कोई भी X का कोई भी हम element लेते हैं Y closure से, so there would exist for every that element there would exist a sequence जो उस X को converge करेगी, and Xn जो है, right? Xn Y में है तो automatically H में भी होगा, so therefore Xs is in H and is converges to X. Therefore Xn is Cauchy and X belongs to H. That means X belongs to W closure, right? So therefore we have that Y closure is contained in W closure, and from this inequality we had W closure is contained in Y closure. So therefore we have that inequality is proved. Any doubt in this? मैम ये रिपीट कर दो एक बार। पूरा चलो, फर्स्ट थिंग ये क्लियर है कि हमारे पास H नहीं मैम, डब्ल्यू बार इक्वल टू वाई, ये वाला। अच्छा ठीक है। सी W bar is equals to W bar dash W dash bar is equals to Y हमें शो करना है, राइट? तो उसके लिए what we'll do is we'll take first inequality तो हमें ऑलरेडी प्रूव हो गई कि W dash is always contained in this W dash closure is always contained in Y closure. ये तो डायरेक्ट कंटेनमेंट प्रॉपर्टी है क्लोजर की, right? Because W dash is contained in Y, so therefore its closure would be contained in Y closure, right? So first way तो हो गया यहाँ पे. Second what we are doing is अब हमें क्या प्रूव करना है कि अगर हम एक एलिमेंट लेते हैं Y closure में, right? So that would be contained in W dash closure. और यहाँ पे हम Y closure क्यों ले रहे हैं? Because हमें प्रूव करना है कि H एक वो आगे देखेंगे हम. नाउ एक हमने एलिमेंट लिया Y क्लोजर में. Y क्लोजर में एलिमेंट लेने से क्या होगा कि हमारे पास एक सीक्वेंस मिल जाएगी Y में जो कि X को कन्वर्ज कर रही है, राइट? दिस स्टेप इज क्लियर? यस मैम। ठीक है. नाउ X जो है वो Y क्लोजर में है, राइट? एंड Y क्लोजर क्या है? कंटेन्ड इन H है. सिंस Y इज कंटेन्ड इन H तो Y क्लोजर इज ऑल्सो इन H. तो अगर Y क्लोजर का कोई एलिमेंट है दैट वुड बी इन H ऑल्सो, राइट? So similarly we have that Xn जो sequence था Y में that is in H and that converges to X, right?
तो यहाँ पे क्या आ गया, xn एक सीक्वेंस है हमारे पास एक हिल्बर्ट स्पेस में जो कि कन्वर्ज कर रहा है, एंड हिल्बर्ट स्पेस है h, तो वो कंप्लीट होगा, एंड कंप्लीट है तो सीक्वेंस कॉशी होगी. सो देयरफॉर xn इज अ कॉशी सीक्वेंस, राइट. एंड कॉशी सीक्वेंस किस में आई, y में, एंड x बिलोंग्स टू h, राइट. x h में है ही. So therefore we would have is x belongs to this W closure, क्योंकि W closure क्या था, W dash आना चाहिए वैसे यहाँ पे, सॉरी. अगर x h में भी है, राइट, एंड यहाँ पे हमने प्रूव किया है कि the set W closure is nothing but h, so we will have x is belongs to W closure, राइट. तो हमें यहाँ पे क्या प्रूव किया सेकेंड फर्स्ट पार्ट में, कि अगर एक x y क्लोजर में था तो वो x जो है W क्लोजर में भी बिलोंग कर गया, राइट. एंड W dash closure was nothing but W intersection Y, राइट. W में भी होना चाहिए एक एलिमेंट, Y में भी होना चाहिए, तब वो W dash में आ जाएगा. हमने यहाँ पे क्या शो किया है, X जो एलिमेंट है वो Y क्लोजर में भी है, W क्लोजर में भी है, तो इनके इंटरसेक्शन में भी होगा, राइट. सो देयरफॉर W क्लोजर के W dash के क्लोजर में आ जाएगा. सो देयरफॉर यहाँ से आएगा कि X belongs to W dash क्लोजर, राइट. सो y dash is contained in W dash, एंड यहाँ से सेकेंड इनइक्वालिटी आएगी. अब क्लियर हुआ? Yes, ma'am. Thank you, ma'am. So next is the question. The question says that if T is a bounded linear operator from x to x on a complete inner product space, right? And if inner product of Tx comma x is equals to 0 for all x, we have to show that T is a 0 operator, right? So to prove this, now this holds T inner product Tx x is equals to 0 holds for all x, right? So if we take x and y to be two elements in x, then x plus y would also belongs to x, right? Because x is in a complete vector space, right? So linearity तो hold करेगी. So x plus y भी अगर स्पेस में है तो ये जो इक्वालिटी है ये x plus y के लिए भी होल्ड करेगी. तो हमने x plus y पे इसको अगर हम अज्यूम करते हैं कि ये होल्ड करता है, so that would have is t लीनियर ऑपरेटर है, so लिनियरिटी के से डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा. So that would have t of x plus y क्या आ जाएगा, tx plus ty, and x plus y as it is था. इस इनर प्रोडक्ट को हम ओपन अप कर सकते हैं. सो वी वुड हैव इज tx comma x, tx comma y, then ty comma x and ty comma 0, right? So we have this equality. Now what this gives is tx comma x is 0, right? क्योंकि एलिमेंट सेम है, हाइपोथेसिस से tx 0, ty 0, right? So we would left with only tx y and tyx is equals to 0, right? So similarly, if we replace this y by iota y in 1, right? So we would have this inequality because this holds for all x and y, right? And in an inner product space, and यहाँ पे जो है field नहीं दी हुई है तो field हम assume करके चलेंगे कि complex है, and complex है, so iota y would be belongings to the field, to the space, right? So therefore scalar multiplication से, so therefore we have, हम consider कर सकते हैं equation first में y की जगह iota y को replace करना, and जैसे हमने y and iota y को replace किया, what we would have is inner product tx comma iy plus t of iy into x. तो यहाँ से क्या आ गया, सेकेंड एलिमेंट में कॉन्जुगेट लीनियर होता है, सो आयोटा का कॉन्जुगेट इंटू टी एक्स वाई प्लस फर्स्ट में लीनियर होता है, सो आयोटा टाइम्स टी वाई एक्स इज इक्वल्स टू 0. नाउ आयोटा का कॉन्जुगेट इज नथिंग बट माइनस आयोटा, so solving this inequality we would have is t of x y is equals to t of y x from 2, and from 1 and 2 what we would have is t of x y is 0, right, for all x and yx. So that means tx comma tx is equals to 0, right? अगर हम y को tx भी ले लेते हैं, y को हम tx assume कर सकते हैं in particular, क्योंकि जो t हमारा ऑपरेटर था that was from x to x, right? So x के ही एलिमेंट इसके कोडोमेन में है and y is in x, so in particular if we take y is equals to tx, so this would also hold inner product tx comma tx is equals to 0, right? And ये कंडीशन कब होल्ड करती है, जब tx is equals to 0 for all x, क्योंकि ये हर एक all x के लिए है, right? Variation is on x, so therefore we have this operator is equals to 0. Any doubt in this?
मैम आई को बाहर कैसे निकाला मैम? टी आई वाई एक्स। यहाँ से मैम ओके, तो टी जो है लीनियर ऑपरेटर है, टी लीनियर ऑपरेटर हमें हाइपोथेसिस में गिवन है क्वेश्चन की टी इज अ बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर, राइट। तो लीनियर ऑपरेटर है तो स्केलर वाला प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, टी ऑफ अल्फा एक्स वुड बी इक्वल्स टू अल्फा ऑफ टी एक्स, यस मैम, यस मैम। ठीक है। एंड देन उससे अल्फा जो है इनर प्रोडक्ट के भी बाहर आ सकता है, प्रॉपर्टी ऑफ इनर प्रोडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट अब इसका जो है काउंटर एग्जांपल है कि यहाँ पे दिस वुड नॉट होल्ड इन केस जब x कंप्लीट नहीं है, राइट। अबव रिजल्ट डज नॉट होल्ड इन केस ऑफ अ रियल इनर प्रोडक्ट स्पेस। अगर डायरेक्टली रियल अगर कंप्लीट नहीं, सॉरी, दिस होल्ड्स फॉर कॉम्प्लेक्स स्पेस तो हमने देख लिया ना, बिकॉज आयोटा वाई हम ले रहे थे, बट अगर हम रियल इनर प्रोडक्ट स्पेस लेंगे तो दिस रिजल्ट वुड नॉट होल्ड। एग्जांपल इज इफ वी टेक x स्पेस इज इक्वल्स टू r स्क्वायर, देन इनर प्रोडक्ट एक्स वाई को कैसे डिनोट कर पाएंगे? zeta 1 eta 1 plus zeta 2 eta 2, राइट। r स्क्वायर में एलिमेंट्स है तो 2 टपल होंगे, right? So we define an operator t from r square to r square by t of alpha beta is equals to beta comma minus alpha, right? We can easily show that this is a bounded linear operator, right? So next, if we consider t of pp where p is equals to alpha b, right? t जो है operator जो है वो उसके elements कहाँ से आ रहे हैं? डोमेन के एलिमेंट्स r स्क्वायर से आ रहे हैं, तो वो 2 टपल टाइप के होंगे। तो हमने लिया एक एलिमेंट p जो कि अल्फा एंड बीटा है, राइट। सो वी आर कंसीडरिंग दिस इनर प्रोडक्ट टीपी कॉमा p, दैट वुड बी इनर प्रोडक्ट ऑफ t अल्फा बीटा कॉमा अल्फा बीटा, एंड t ऑफ अल्फा बीटा क्या है जो हमने अभी डिफाइन किया? बीटा कॉमा माइनस अल्फा एंड अल्फा कॉमा बीटा। नाउ इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन से दिस वुड बी नथिंग बट बीटा इंटू अल्फा माइनस अल्फा इंटू बीटा, right? And this is 0, right? Because alpha and beta are scalars in R individually. So therefore t of p is equals to 0 for all p belonging to x. हर एक p के लिए हमारे पास हाइपोथेसिस यहाँ पे ट्रू हो गई, t एक बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है एंड t of p comma p is 0, right? बट यहाँ पे दिक्कत क्या हो रही है? t is not a zero ऑपरेटर, क्योंकि t ऑपरेटर को हमने डिफाइन किया है बीटा कॉमा माइनस अल्फा, राइट। तो देयरफॉर हमें एक एग्जांपल मिल गया कि अगर हम स्पेस को रियल स्पेस ले लेते हैं, रियल इनर प्रोडक्ट स्पेस, तो ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी। दिस होल्ड्स ओनली व्हेन द स्पेस इज कॉम्प्लेक्स। एनी डाउट इन दिस? तो इसीलिए यहाँ पे कॉम्प्लेक्स इनर प्रोडक्ट स्पेस लिखा था, दैट इज इंपॉर्टेंट। एनी डाउट इन दिस? No, ma'am. चलो, with this section is complete, section 3.2. Now we'll proceed on to section 3.3. Section 3.3 is orthogonal complements and direct sums. You remember in the last section 3.1 we defined orthogonality, right? कि two elements को orthogonal कब बोलते हैं? जब their inner product is 0, right? So we have to take note of that. And next, now when we defining inner metric spaces, so distance of an element to a set हम कैसे निकालते थे? That distance would be infimum of dxy where y belongs to m. अगर हम एक x element और m सबसेट के बीच का डिस्टेंस निकाल रहे थे तो the distance would be like this ना, infimum of y belongs to m dxy. We define that in metric spaces. In when we finding norm spaces, then distance became infimum of norm of x minus y, right? क्योंकि यहाँ पे metric space में structure was d and norm spaces में structure was norm, right? Similarly, why we are doing this is because we will be finding distance between elements and the orthogonal sets, right, of अभी inner product spaces में use होगा ये, because inner product spaces में we have already defined dxy क्या होता है? norm of x minus y, and norm of x minus y को हमने inner product में define किया था, right? So अभी next theorem prove करने के लिए we'll need two definitions. The definitions are, what do we call a segment?
joining two elements x and y, right? We have two elements x and y, right? We have a segment joining these. So इस segment की जो length होगी और इस segment की equation जो होगी उसको हम किससे given करते हैं? We denote that by z, where z is the set of all x such that x, this can be written as this. That is the simple fact जो हमने linear algebra geometry में भी पढ़ा है. If we have two elements x and y, then the line segment joining x and y can be written as alpha x plus 1 minus alpha y, where alpha belongs to real number and alpha is from 0 to 1. Right? We all know this fact, this line segment, right? So next is, why do we define this line segment? Because we need to define a convex set, right? A subset M of x is said to be convex if for every xy belongs to the subset, the line joining the points x and y is contained in M, right? So यहाँ से मतलब क्या हुआ? Let us take an example. If we are taking an oval set, right? And we have 2 points, x here, x and y, we have 2 points. Say this. Right? These are the 2 points x and y, one at each end. Why is it not stopping? So this line segment is totally contained in this set only if we have this disk. अगर हम ये circle लेते हैं, right? अगर सिर्फ circle ले रहे हैं, so this line segment is not contained in the circle, right? सिर्फ 2 points की corresponding हमारे पास ये आएगी, जिसमें contained होगा. And अगर हम ये disk लेते हैं, completely filled अगर लेते हैं, if this is filled, right? So all the points on this line segment जो है वो पूरे disk के अंदर आएंगे. So therefore that we call as a convex set. अगर सिर्फ सर्कल लेंगे तो उसको कन्वेक्स सेट नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि लाइन सेगमेंट की जो पॉइंट्स आ रहे हैं वो सर्कल के इक्वेशंस में लाइन नहीं कर रहे हैं. डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? कॉन्वेक्स सेट और कॉन्वेक्स सेट नहीं है का डिफरेंस. इज इट क्लियर और नॉट? Yes, ma'am. चलो, नेक्स्ट इज जस्ट 2 points. We do not need to prove that every subspace is convex and intersection of convex set is convex. ये कैसे आया? Every subspace is convex. Subspace जब प्रॉपर्टी निकालते हैं तो उसमें हम क्या निकालते हैं? एडिशन होल्ड करता है, राइट? अल्फा एक्स प्लस वाई जो है होल्ड करेगा अगर एक्स एंड वाई 2 एलिमेंट्स हैं, तो देयरफॉर वो कन्वेक्सिटी से इजीली आ जाएगा. एंड सेकंड, इंटरसेक्शन ऑफ कन्वेक्स सेट इज कॉन्वेक्स because we have, if this is a circle and this is another polygon which is completely filled, right? So intersection of this would be this. इसके अगर हम कोई भी 2 points लेंगे, that would always be a convex set, right? So we do not need to prove this. These are the basic results from real analysis. Now since we have the हाँ मैम, उसमें जब हम सबस्पेस की वो रिक्वायरमेंट होती है, इफ एंड ओनली इफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई बिलोंग्स टू सेट, तो मैम यहाँ पर क्या है, ये जो हमने सेगमेंट डिफाइन किया इसमें सम ऑफ कोफिशिएंट्स 1 है. हाँ, लेकिन मैम जो अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई थी तो उसमें अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1, ये नीड नॉट बी ट्रू है. नहीं, उसका ये पर्टिकुलर एग्जांपल है ना सबस्पेसेस का. अगर कोई भी सबस्पेस हम ले रहे हैं, अल्फा एक्स और बीटा वाई एलिमेंट ले रहे हैं, राइट? तो उसमें अगर हम अल्फा एक्स एंड बीटा वाई अगर बिलोंग कर रहा है सबस्पेस में, अगर बीटा को 1 माइनस अल्फा भी ले लेंगे तभी वो बिलोंग करेगा. दैट इज व्हाट वी आर सेइंग कि एवरी सबस्पेस इज कॉन्वेक्स. कन्वेक्सिटी होल्ड करेगी सबस्पेस में. कन्वेक्सिटी कहने का मतलब क्या है कि अगर 2 पॉइंट्स है एक्स एंड वाई, तो उनका जो लाइन ज्वाइनिंग है वो बिलोंग करेगा. एंड सबस्पेस भी वही है ना कि अगर 2 पॉइंट्स है एक्स एंड वाई तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन बिलोंग करेगा. जिसमें वही अल्फा बीटा लेंगे ना, लेकिन जिसका सम ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1.
चलो अब ये इंपॉर्टेंट क्यों थे, कॉन्वेक्सिटी डिफाइन करना या सेगमेंट डिफाइन करना। सेगमेंट हमने डिफाइन की फॉर कन्वेक्सिटी, राइट, एंड कन्वेक्सिटी डिफाइन करने का मतलब हमारा था मिनिमाइजेशन वेक्टर, ये थ्योरम प्रूव करना कि x अगर हमारे पास कोई एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है एंड m जो है एक नॉन एम्प्टी कॉन्वेक्स सबसेट है इसका, जो कि कंप्लीट है। एंड कंप्लीट किस सेंस में है, मेट्रिक के सेंस में, इंड्यूस्ड बाय द इनर प्रोडक्ट, राइट। Then for every x belonging to x, there exists a unique y such that this holds. अब हमारा ये कहने से मतलब क्या था, right? Why do we need this theorem? So for that I need to refer to book ताकि तुम्हें easily समझ आ जाए. Wait a second. तो जब हमने मैट्रिक स्पेसेस पढ़ा था उसमें डेल्टा वॉज इन्फीमम ऑफ डी एक्स वाई, वो क्या डिनोट कर रहा था कि x से अगर एक कोई सेट है हमारे पास, x एलिमेंट है, राइट, एक सेट है m एंड एक x एलिमेंट है, तो उसका मिनिमम डिफरेंस हम डेल्टा निकाल सकते थे, राइट। तो अब हमारे पास क्या केस आता है, दैट व्हाट इज आर स्क्वायर, राइट, आर स्क्वायर में हमने ये डिफाइन किया था। अब हमारे पास क्या आता है कि क्या हम इनर प्रोडक्ट स्पेसेस में, इन शॉर्ट हिल्बर्ट स्पेसेस में भी ऐसा कुछ प्रूव कर सकते हैं कि नहीं, राइट, कि हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन सेट एंड एलिमेंट आ जाए, राइट। सो वी हैव थ्री केसेस। फर्स्ट इज अगर m सेट हमारे पास दिस लाइन सेगमेंट है, राइट, एंड x इज दिस पॉइंट, देन इस केस में कोई भी मिनिमाइजेशन वेक्टर नहीं एग्जिस्ट करेगा जो पूरे सेट से मिनिमम हो रहा हो, राइट, कि ओपन सेगमेंट है बिकॉज ये। नेक्स्ट अगर x यहाँ पे बिलोंग कर रहा है, देन इसका मिनिमाइजेशन वेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर वेक्टर। इस सेट में परपेंडिकुलर जो आएगा वो आउट ऑफ द सेट आएगा, राइट। देयरफॉर इस केस में कोई भी y नहीं मिलेगा ऐसा जो कि मिनिमाइज कर सके डिस्टेंस को, x एंड m के डिस्टेंस को, राइट। जब हम ये वाला केस कंसीडर कर रहे हैं वेयर x इज परपेंडिकुलर टू दिस, तो इस केस में हमें ये y मिल जाएगा जो कि इस डिस्टेंस को मिनिमाइज कर देगा x के और m के। नाउ नेक्स्ट केस हमारे पास आता है कि m अगर इस टाइप का है, आर्क शेप का है, देन हमारे पास बहुत सारे डेल्टा आ सकते हैं जो कि इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, तो इस केस में इनफाइनाइट y आ जाएंगे। तो हमारा इस सेगमेंट में पढ़ने का मेन मोटो क्या है कि हमें ऐसा कब मिलेगा, इन विच कंडीशन हमारे पास एक डेल्टा एग्जिस्ट कर जाएगा फॉर इनर प्रोडक्ट स्पेसेस, राइट। तो हमें निकालना है कि कौन सी ऐसी कंडीशन होगी जिस केस में हमारे पास एक एलिमेंट और एक सेट का जब हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो वो डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस जो है वो एग्जिस्ट कर जाए, राइट। सो दैट इज व्हाई वी नीड दिस थ्योरम, राइट। दिस थ्योरम सेज दैट x अगर एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है एंड m उसका एक कॉन्वेक्स सबसेट है विच इज कंप्लीट, देन हर एक x के लिए हमें एक यूनिक y मिल जाएगा, राइट, सच दैट डेल्टा इज इक्वल्स टू इनफीमम ऑफ दिस, राइट। दैट मीन्स y टिल्डा क्या था यहाँ पे, y टिल्डा इज बिलोंगिंग्स टू m। इसका शॉर्ट कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई इनर प्रोडक्ट स्पेस है x हमारे पास एंड उसका हमारे पास एक कॉन्वेक्स सबसेट मिल जाता है जो कि कंप्लीट है, देन हमारे पास हर एक x के लिए एक ना एक मिनिमाइजेशन वेक्टर मिल जाएगा, राइट, जो कि सेट x के और सेट m के डिस्टेंस को मिनिमाइज कर रहा हो। थ्योरम की स्टेटमेंट समझ आई? मैम एक बार रिपीट करना। चलो ठीक है। हमारे पास केस मान लो ये पॉलीगन है, राइट, ट्रायंगुलर ले लिया हमने इजीली, मान लो ये फिल्ड ट्रायंगल है, देन व्हाट वी से इज, एंड ये हमारे पास एक पॉइंट है x, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं, अगर हमारे पास ये कंप्लीट सेट है x, उसका एक एलिमेंट लिया हमने x यहाँ पे, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं, अगर ये सेट m हमारे पास कन्वेक्स सबसेट आ जाता है एंड कंप्लीट आ जाता है, तो हम इस पॉइंट से इस सेट के ऊपर एक मिनिमम डिस्टेंस का वेक्टर निकाल सकते हैं, राइट। एंड वो मिनिमम डिस्टेंस किससे गिवन होगा, डेल्टा से। हम ये कह रहे हैं इसमें x अगर कोई इनर प्रोडक्ट स्पेस है, m उसका एक कॉन्वेक्स सबसेट है विच इज कंप्लीट, तो हर एक x के लिए, चाहे यहाँ पे x हो चाहे यहाँ पे x हो, हम हर एक x के लिए एक यूनिक वेक्टर मिल जाएगा y, ये वेक्टर y मिल जाएगा इजीली, सच दैट
सॉरी ये जो डिस्टेंस होगा डेल्टा ये मिनिमाइज हो जाएगा, y मिल जाएगा हमें m में बिलोंग करता हुआ, राइट। सो सबसेट और एलिमेंट का डिस्टेंस मिनिमाइज करने की हमारे पास एक कंडीशन आ जाएगी। अब समझ आया? यस मैम। यहाँ फिर वाई टिल्डा क्या है मैम? y टिल्डा और एलिमेंट्स जो कि m में बिलोंग कर रहे हैं, राइट। हम अगर मिनिमम निकाल रहे हैं डिस्टेंस का, तो मिनिमम निकालने का मतलब क्या है कि हर एक एलिमेंट अगर m में है तो उससे सबका डिस्टेंस निकालेंगे, एंड सबके डिस्टेंस का मिनिमम जो होगा उसको हमने y रिप्रेजेंट किया है, राइट। सो infimum ऑफ ऑल दोस डिस्टेंसेस ऑफ x फ्रॉम y टिल्डा क्या है? m का एलिमेंट, राइट। सो दैट इज इक्वल्स टू x माइनस y। m के हर एक एलिमेंट के लिए एक डिस्टेंस आएगा x से, राइट। जब हम उन सब का infimum लेंगे तो हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ जाएगा, एंड दैट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वुड बी डेल्टा, जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं x माइनस y से। तो इस थ्योरम का कहने का मतलब सिर्फ ये है कि अगर एक कॉन्वेक्स सेट मिल जाता है कंप्लीट, तो हमारे पास जो कंडीशन आएगी मिनिमम डिस्टेंस एग्जिस्ट करने की, वो यूनिक एलिमेंट आएगा y। अब क्लियर है? मैम ना इसको प्रूव करते हैं। तो प्रूफ के लिए फर्स्ट विल यूज कि डेल्टा है क्या। डेल्टा इज नथिंग बट infimum ऑफ नॉर्म ऑफ x माइनस y टिल्डा वेयर y टिल्डा बिलोंग्स टू m, राइट। इसका क्या मतलब है? x और y m के हर एलिमेंट का हमने डिस्टेंस निकाला, दैट इज नॉर्म ऑफ x माइनस y टिल्डा। ये डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर देगा दो पॉइंट्स का, राइट। उन सब का हमने infimum लिया, एंड दैट infimum डिस्टेंस को हमने बोल दिया डेल्टा, राइट। अब हमें प्रूव करना है कि ये infimum जो है डेल्टा, ये इसके करस्पॉन्डिंग हमें एक एलिमेंट मिल जाएगा, राइट। सो फॉर दैट व्हाट वी कंसीडर इज, नाउ डेल्टा जो है infimum है, एंड infimum की डेफिनेशन क्या होती है? बाय द डेफिनेशन ऑफ infimum there would exist a sequence by n in m such that delta n converge to delta where delta n is equals to this, राइट। डेल्टा जो है infimum है एक एलिमेंट का, एक सेट के एलिमेंट्स का, एक चीज का स्ट्रक्चर का infimum है। तो infimum की डेफिनेशन क्या होती है कि एक सीक्वेंस मिल जाएगा सच दैट वो सीक्वेंस जो है उस infimum को कन्वर्ट करता हो, राइट। तो यहाँ पे हमने सीक्वेंस क्या लिया है? डेल्टा एन, डेल्टा पे कन्वर्ट करता हुआ है, वेल डेल्टा एन इज नॉर्म ऑफ x माइनस वाई एन, राइट। First we'll say that this yn sequence is Cauchy, right? Cauchy प्रूव करने से क्या होगा? हमें एक्चुअल में प्रूव क्या करना था? यूनिकनेस ऑफ m कंप्लीट है। अगर हम सीक्वेंस प्रूव कर देंगे कि Cauchy है, देन कंप्लीटनेस इससे क्या हो जाएगा? कन्वर्ज कर जाएगा वो y, ठीक है, एंड देन वी वुड हैव अ y बिलोंगिंग टू y। सो देयरफॉर व्हाट वी नीड टू प्रूव इज कि ये जो सीक्वेंस yn हमने लिया है m में, दैट वुड बी Cauchy सीक्वेंस, राइट। तो उसके लिए what we take is let yn minus x be vn। ये हमने क्यों लिया है आगे पता चलेगा। नॉर्म ऑफ yn माइनस एक्स क्या था? डेल्टा n फ्रॉम इक्वेशन 1, राइट। तो जब हम नॉर्म ऑफ vn लिखेंगे, दैट वुड बी नॉर्म ऑफ yn माइनस एक्स, दैट वुड बी नथिंग बट डेल्टा n, राइट। So when we consider vn plus vm, that would be nothing but yn plus minus x plus ym minus x, right? So yn plus ym minus 2x, यहां से अगर हम 2 को कॉमन आउट ले लेते हैं, we would have is 2 times norm of yn plus ym minus x, right? This element जो यहाँ पे आया, now is this a sequence जो कि m में belong कर रही है? क्योंकि जो एलिमेंट्स हमने लिए थे yn सीक्वेंस के, वो m में थे, yn सीक्वेंस m में था, एंड m क्या है? कॉन्वेक्स सबसेट है। सो देयरफॉर इसकी हर एक ये जो कोफिशिएंट्स हैं 1/2 एंड 1/2, 1/2 का सम क्या होता है? 1। सो देयरफॉर ये लाइन सेगमेंट की इक्वेशन को होल्ड करेगा। सो देयरफॉर ये जो एलिमेंट है yn प्लस ym/2, ये m में बिलोंग कर जाएगा, right? So therefore this would be nothing but norm of some element minus x where this element belongs to m। अब डेल्टा की डेफिनेशन क्या थी? डेल्टा was infimum of all those this norms, right? एंड हमारे पास यहाँ पे इस केस में y टिल्डा क्या है? yn plus ym/2। so therefore
we have that this norm is greater than equals to 2 times delta. Is this clear? मैम यहाँ पे जो नॉर्म है वो ग्रेटर देन 2 डेल्टा आई है बिकॉज infimum है, that's why ना. हाँ, because delta was infimum, right? तो इससे सब हमेशा ग्रेटर देन ही रहेगा वो नॉर्म. हाँ, अगर यहाँ पे हम y ये y टिल्डा की जगह पे कोई एक y एलिमेंट लिखते हैं m का, जो कि हमारे पास यहाँ पे yn plus ym by 2 है, so that element का distance, that is norm of this would always be greater than equals to delta ना, infimum से तो हमेशा बड़ा होगा. That is what we are saying here. Is it clear now? यस मैम. आपने कहा था नीचे पता चलेगा कि वहाँ वीएन और समथिंग क्यों माना. हाँ, अभी वो अभी नीचे आएगा. हाँ, नेक्स्ट आएगा. ओके ओके ओके. नेक्स्ट हम कंसीडर कर रहे हैं नॉर्म ऑफ yn माइनस ym स्क्वायर. ठीक है, इससे क्या आएगा, yn की जगह पे हम लिख सकते हैं vn प्लस x. राइट, हमें सीक्वेंस को yn को दिखाना है कि yn कॉशी है. राइट, yn कॉशी दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, नॉर्म ऑफ yn माइनस ym कंसीडर करेंगे. तो हमने इसका स्क्वायर कंसीडर कर लिया पहले ही, ताकि प्लस माइनस की कोई टेंशन ना रहे. अब yn को हम क्या लिख सकते हैं, vn प्लस x, ऊपर हमने लिखा था. राइट, yn minus x was vn, so yn को क्या लिख सकते हैं, vn plus x. Similarly ym को क्या हम लिख सकते हैं, vm plus x. तो यहाँ से x कट गया, what we have is norm of vn minus vm square. आ गया. अब यहाँ पे ये vn जो vm और vn m दो एलिमेंट्स हैं, इनके ऊपर हम पैरेललोग्राम इनइक्वालिटी लगा सकते हैं. पैरेललोग्राम इनइक्वालिटी क्या कहती है, norm of x minus y square plus norm of x plus y square is equals to 2 times this norm of x square plus norm of y square. पैरेललोग्राम इनइक्वालिटी याद है? यस मैम. यस मैम. ठीक है, सो पैरेललोग्राम इनइक्वालिटी से इसकी वैल्यू क्या आएगी, this would be nothing but minus of norm of vn plus m square plus this. right, now ये क्या होगा, minus of vn plus vm square. vn plus vm क्या था, this would be greater than 2 delta. यस मैम. ठीक है, सो यहाँ से this would be nothing but minus of 2 delta का स्क्वायर प्लस norm of vn square is delta n, इक्वेशन 2. यस मैम. राइट, तो यहाँ से norm of vn square की जगह delta n square डाल दिया, norm of vm square की जगह भी delta m square आ जाएगा. राइट, अब यस मैम. कॉशी सीक्वेंस में क्या करते हैं, nm टेंड्स टू इंफिनिटी करते हैं, सो दिस डिस्टेंस शुड टेंड टू 0. राइट, यस मैम. तो हमने nm टेंड्स टू जब इंफिनिटी करेंगे तो व्हाट वी वुड हैव इज माइनस 2 डेल्टा स्क्वायर. डेल्टा n किस पे कन्वर्ज कर रहा है, डेल्टा स्क्वायर, डेल्टा पे. डेल्टा पे. राइट, तो nm टेंड्स टू इंफिनिटी करेंगे तो ये दोनों भी डेल्टा पे कन्वर्ज कर जाएंगे, सो वी वुड हैव इज दिस इज होल 0. राइट, minus 2 delta square plus 2 delta square, so this is 0. That is norm of yn minus ym square converges to 0 as nm tends to infinity. आ गया, so therefore yn is Cauchy sequence in m. अब यहाँ पे vn अगर नहीं लेते हम, right, तो अगर vn नहीं लेते तो हमारे पास first thing is ये vn वाला जो टर्म है ये नहीं आता, हमारे पास क्या आता, सीधा yn minus ym. अब yn माइनस ym के ऊपर हमारे पास कोई कंडीशन नहीं थी, एक्सेप्ट हमें उसमें सिर्फ x प्लस माइनस करते. ओके, लेट अस से कि हमने vn अज्यूम ही नहीं किया था, तो yn माइनस ym क्या आता, दैट वुड बी, यहाँ पे हम लिखते yn माइनस x प्लस x माइनस ym, यही आता. मैम इस पे पैरेललोग्राम इक्वालिटी यूज नहीं कर सकते डायरेक्टली, किस पे, yn माइनस ym नॉर्म स्क्वायर. अभी वो भी देख के करते देखते हैं कि उसमें क्या दिक्कत आएगी. ठीक है, यहाँ से क्या आता, दिस वुड बी लेस देन इक्वल्स टू norm of yn माइनस x प्लस norm of ym माइनस x, यही आता अगर Yes, ma'am. vn की टर्म नहीं लेते. राइट ट्रायंगल प्रॉपर्टी. हाँ, राइट, so therefore this would be less than equals to yn minus x जो था उसका नॉर्म किसके इक्वल था, डेल्टा n के.
Yes, ma'am. right? So this would be nothing but 2 delta n. 2 times delta n, right? तो यहाँ से हम अगर डेल्टा एन नहीं, सॉरी 2 डेल्टा एन नहीं, डेल्टा एन प्लस डेल्टा एम, and when n tends, which would be tending to 2 delta if n and m tends to 0, right? Oh sorry, tending to infinity. बिकॉज डेल्टा एन जो है वो डेल्टा को कन्वर्ट कर जाता एंड डेल्टा एम जो है वो भी डेल्टा को कन्वर्ट कर जाता, तो दिस वुड कन्वर्ज टू 2 डेल्टा, राइट, फॉर एन एम टेंस टू इन्फिनिटी. अब यहां से हम ये नहीं लिख पा रहे हैं ना कि दिस वुड कन्वर्ज टू 0, हमें चाहिए क्या था, कन्वर्जिंग टू 0, जबकि ये तो डेल्टा पे आ गया, राइट? तो यहां से हम कॉशी प्रूव नहीं कर पाते अगर डायरेक्ट वाई एन लेते. ठीक है, किया हमने वही है नॉर्मल वाला, लेकिन यहाँ पे फर्क किस बात से पड़ गया, ये वीएम का जो 2 डेल्टा स्क्वायर आ रहा है, इससे ये 2 डेल्टा कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए वीएन का यूज हुआ. इज दिस क्लियर? तो मैम यहाँ पे ये तो कर सकते थे ना कि नॉर्म ऑफ बाई एन माइनस बाई एम इज लेस देन एप्सिलॉन, वेयर एप्सिलॉन इज इक्वल टू 2 डेल्टा फॉर ऑल एन एम टेंस टू, अच्छा इनफिनाइट वो फॉर ऑल. ओके, गॉट इट मैम, गॉट इट. So now next is हमारे पास क्या आ गया, वाई एन कॉशी आ गया m में, एंड m was complete, so therefore वाई एन जो है कन्वर्ज कर जाएगा m में, and therefore yn converges to y belonging to m, right? जिस एलिमेंट को कन्वर्ज करेगा that is in m. इससे क्या आया, y belongs to m. That means this equation would hold for y also, that norm of x minus y is greater than equals to delta, because delta was infimum, right? So norm of x minus y is greater than equals to delta. Now x minus y को क्या लिख सकते हैं, x minus yn plus yn minus y. So this would be nothing but yn minus x का नॉर्म क्या आएगा, डेल्टा एन, एंड नॉर्म ऑफ yn minus y, नॉर्म ऑफ yn minus y जो है 0 को कन्वर्ट कर जाएगा. So we would have is norm of x minus y is less than equals to delta and greater than equals to delta, right? So that is x minus y is equals to delta. That means जो हमारे पास सीक्वेंस हम ले रहे थे yn सीक्वेंस, वो yn सीक्वेंस जो है कॉशी है एंड m कंप्लीट है, सो देयरफॉर वो कन्वर्ज कर जाएगी एलिमेंट को, एंड जिस एलिमेंट y को वो कन्वर्ज कर रही है वो एलिमेंट जो है नॉर्म दे रहा है इक्वल टू डेल्टा, राइट? एंड डेल्टा क्या था, डेल्टा एन सीक्वेंस का लिमिट, डेल्टा एन सीक्वेंस का लिमिट, राइट? सो देयरफॉर हमने यहाँ पे प्रूव क्या किया है कि एक ऐसा डेल्टा एग्जिस्ट कर जाएगा सच दैट दिस इक्वेशन विल होल्ड, डेल्टा इज इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ x माइनस वाई, जहाँ पे y m में है. तो इसको प्रूव करने के लिए हमने एग्जिस्टेंस प्रूव करनी थी, एग्जिस्टेंस प्रूव करने के लिए हमने ये स्टेप्स यूज किए. ये क्लियर है एग्जिस्टेंस का पार्ट? मैम जहाँ पे मैम आपने एक बार यहीं पे आपने एक कन्वर्स दिखाया कि सीक्वेंस वाई एन इज कन्वर्स टू वाई, तो यहाँ पे आपने ये कैसे कहा कि बाई एम में बिलोंग कर रहा है? m इज कंप्लीट ना, तो अगर कॉशी सीक्वेंस m में है तो वो कन्वर्ट करेगी m में ही. यस, ओ यस मैम, तो वो जो पॉइंट होता है वो वही होता है, ठीक है. मैम एक बार ये बता दो कि हमने डायरेक्ट पैरेललोग्राम इनइक्वालिटी यूज क्यों नहीं की. चलो, नॉर्म ऑफ yn माइनस वाई मैम हाँ बोलो. मैम अभी यूनिक तो नहीं दे सकते हम लोग, नहीं, यूनिक अभी यूनिक के प्रूव ही बारे नहीं में किया, यूनिक अभी यूनिक तो प्रूव करना पड़ेगा ना मैम? हाँ अभी प्रूव कर रहे हैं. ओके ओके. तो पहले उनका डाउट क्लियर कर दूं मैं. तो उन्होंने पूछा था पैरेललोग्राम इनइक्वालिटी डायरेक्ट क्यों नहीं यूज की, राइट? yn माइनस वाई एम अगर हम स्क्वायर कंसीडर करते तो दैट वुड बी फ्रॉम पैरेललोग्राम इनइक्वालिटी माइनस ऑफ yn प्लस वाई एम स्क्वायर, कहाँ लिख रही हूँ, माइनस ऑफ नॉर्म ऑफ yn प्लस वाई एम square plus 2 times norm of yn square plus norm of ym square.
अब ये ब्रैकेट्स देख लेना। यही कहती पैरेललोग्राम इनइक्वालिटी। अब यहाँ से yn प्लस ym अगर निकालते हम, so that would be nothing but यहाँ से yn माइनस ym, सॉरी, yn माइनस ym का जो हमने वो निकाला है, yn प्लस ym का हमने कहीं भी नॉर्म नहीं निकाला है, so yn प्लस ym का नॉर्म निकालने के लिए हमें फिर से डेल्टा की जरूरत पड़ती, राइट। सो यहाँ पे हम डायरेक्टली पहली बात तो yn प्लस ym नॉर्म नहीं लिख सकते, ये इक्वेशन की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, एंड इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें फिर से माइनस एक्स और प्लस एक्स करना पड़ेगा, राइट। एंड जब हम ऑलरेडी माइनस एक्स और प्लस एक्स कर रहे हैं, सो दैट इज नथिंग बट वी एन क्वांटिटी ऑलरेडी ना, तो वी एन इसमें इनबिल्ट आएगा। डाउट क्लियर हुआ? ओके मैम, ओके मैम, यस मैम। Next we are proving is uniqueness. So uniqueness के लिए what we do is we take two elements. So let if possible y and y naught both satisfy this equation, that delta is equals to norm of x minus y and delta is also equals to norm of x minus y naught. Right? Now we consider norm of y minus y naught square. What we'll be proving is that this norm is nothing but 0. And norm 0 कब होता है किसी element का? Only when element is 0. So therefore y minus y naught 0 आ जाएगा, therefore y would be equal to y naught, right? So हमें क्या प्रूव करना है कि this norm is 0. Norm 0 प्रूव करने के लिए what we take is minus x plus x किया हमने, because x minus y और x minus y naught की टर्म्स में हमें वैल्यूज पता है, so this would be nothing but minus of norm of y minus x naught. पैरेललोग्राम इनइक्वालिटी लगाई हमने यहाँ पे, हम इसको स्प्लिट अप नहीं कर रहे हैं अभी के लिए, क्योंकि अगर इसको हम स्प्लिट अप करते सो स्क्वायर वाली टर्म है, स्क्वायर वाली टर्म को एज इट इज स्प्लिट अप नहीं कर पाएंगे, एंड यहाँ पे भी स्क्वायर है, राइट। सो पैरेललोग्राम इनइक्वालिटी लगाई, सो पैरेललोग्राम इनइक्वालिटी वुड बी नथिंग बट माइनस ऑफ दिस नॉर्म स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स सेपरेट का नॉर्म, राइट। सो यहाँ पे क्या आएगा, y प्लस वाई नॉट माइनस 2x का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स, ये डेल्टा है, ये भी डेल्टा है, तो नॉर्म स्क्वायर वुड बी डेल्टा स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आ गया 4 डेल्टा स्क्वायर, ये आ गया। एंड नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या बचेगा, अगर 2 को कॉमन लेके आते हैं, सो दैट वुड बी 2 का स्क्वायर 4 बाहर कॉमन आएगा, y प्लस वाई नॉट बाई 2 माइनस एक्स, राइट। अब y प्लस वाई नॉट जो है बाई 2, ये जो है m में बिलोंग कर जाएगा बिकॉज m कन्वेक्स है, राइट। सो दिस वुड बी नथिंग बट लेस देन इक्वल्स टू डेल्टा स्क्वायर, डेल्टा इंफीमम था, यस मैम। right? So minus 4 delta square plus 4 delta square 0. So therefore y is equals to y naught. Uniqueness भी prove हो गया. Any doubt in this? नो मैम। चलो. Next we have a lemma on orthogonality. बस let me see कितना बड़ा proof है. हो जाएगा. चलो. Now in above theorem में हमने क्या किया? Let M be a complete subspace of y and x be fixed. Then ये ब्रैकेट यहाँ पे गलत है, z is equals to x minus y, यहाँ पे ब्रैकेट है z के बाद, is orthogonal to y, right? तो हमने क्या लिया है इस थ्योरम में, इस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या थी, एक बार इसको गो थ्रू करो, कि अगर x एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है, m जो है एक कॉन्वेक्स सबसेट है विच इज कंप्लीट, राइट, तब हमें एक y मिल जाएगा, राइट। तो नेक्स्ट हम थ्योरम क्या कह रहे हैं कि इसी थ्योरम में अगर हम m को एक कंप्लीट सबस्पेस ले लेते हैं y, राइट, एंड x बिलोंग्स टू x, सबस्पेस ऑफ y है, देन z जो है हमारे पास एक एलिमेंट मिल जाएगा जो कि ऑर्थोगोनल होगा y के, राइट, एंड z जो एलिमेंट मिलेगा दैट वुड बी नथिंग बट x माइनस y। तो लेट अस अज्यूम, हमें प्रूव करना क्या है कि z is equals to x minus y, that is orthogonal to y. First we assume कि z orthogonal नहीं है, right? So that means एक z is equals to x minus y is not orthogonal. Orthogonal होने का मतलब क्या होता है, इनर प्रोडक्ट जीरो होनी चाहिए, and this is not orthogonal, that means इनर प्रोडक्ट नॉन जीरो होगी, that means there would exist a y1 belonging to y such that this inner product is non-zero.
राइट। क्लियरली y1 नॉन जीरो है, क्योंकि अदरवाइज इनर प्रोडक्ट जीरो हो जाती, एक भी एलिमेंट जीरो हो जाएगा तो इनर प्रोडक्ट जीरो हो जाएगी, राइट। सो y1 इज ऑल्सो नॉट जीरो। नाउ वी कंसीडर मैम इज, हाँ मैम जो आपने z बराबर x माइनस वाई और ऑर्थोगोनल y लिखा है, यहाँ पे जो x जो है वो तो x से आ रहा है, और जो y है वो भी x ही है ना? नहीं वो y से है। जो x माइनस वाई लिखा है आपने, हाँ अच्छा वो y से, ओके। वो y से है। x belonging to और x is fixed, m एक complete subspace है of y, complete subspace of a set y, and जो ये y आ रहा है that is from y. Let me ओके मैम। yeah, m be a complete subspace y and x belongs to x be fixed, then z is equals to x minus y is orthogonal to y. करेक्ट है। तो हमने यहाँ पे क्या अज्यूम क्या किया है कि x तो जो है x में है एंड y जो है वो y से आ रहा है, ठीक है, y इज इन y, लेकिन जो y सेट ले रहे हैं हम, कंप्लीट y सेट, वो क्या ले रहे हैं m। पिछली थ्योरम में जो m सबसेट था उसको हमने अभी y सबस्पेस से डिनोट किया है, राइट। तो पिछले स्पेस में m क्या था, एक कंप्लीट सेट था जो कि कॉन्वेक्स सबसेट था सिर्फ, राइट। हमने यहाँ पे सबस्पेस की बात नहीं की थी इस थ्योरम के स्टेटमेंट में। m वाज अ कॉन्वेक्स सबसेट, राइट, व्हिच वाज कंप्लीट। अब हम क्या कह रहे हैं, अगर m एक सबस्पेस हो जाता है which is complete, राइट, m अगर एक सबस्पेस हो जाता है जो कि कंप्लीट है, तो उस m को नाम दे रहे हैं हम y, राइट। अगर उसका सबस्पेस हो रहा है तो उसको हम नाम दे रहे हैं y, एंड x जो है एक एलिमेंट है x में, तो एक हमें एलिमेंट मिल जाएगा z जिसको हम डिनोट कर सकते हैं x माइनस y से, एंड दैट एलिमेंट वुड बी ऑर्थोगोनल टू y, एंड दिस y एलिमेंट इज इन y, ओके। एक बार स्टेटमेंट फिर से रिपीट करना मैम। मैम ये m जो कंप्लीट सब स्पेस ऑफ y है या तो क्या? नहीं, m बी ए कंप्लीट सबस्पेस जिसको हम डिनोट कर रहे हैं y से। तो इन इसमें लिखने का मतलब क्या है, वी आर राइटिंग दैट m इज इक्वल्स टू y। पिछली थ्योरम में m को हमने, जो m सेट था उसको हमने y डिनोट कर दिया। जो डिफरेंस क्या है, वहां पे m सिर्फ एक सबसेट था, यहाँ पे हमने m को एक सबस्पेस लिया है, एंड यहाँ पे y और लिखे, जो मैम y जो सब स्पेस है वो x का होगा? हाँ वो x का है। ठीक है। डिफरेंस हमने यहाँ पे भी हमने m क्यों नहीं लिया, उसका एक लॉजिक है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे भी m ही लिख लेते तो दोनों थ्योरम में कंफ्यूजन हो जाती कि कौन सा सबस्पेस के लिए है एंड कौन सा सबसेट के लिए है, राइट। तो हमने सबसेट को m डिनोट किया है एंड सबस्पेस को हमने y डिनोट किया है, ठीक है। तो जब थ्योरम में सबस्पेस यूज हो रहा है, सबस्पेस की प्रॉपर्टीज यूज होंगी, तब हम उसको सबस्पेस बोलेंगे y, वरना वो m ही है। डिफरेंस कुछ नहीं है m और y में, बस ये सबस्पेस लिया है, वो सिर्फ एक सबसेट था, ठीक है। ओके इसीलिए मैम। हमने यहाँ पे m को अलग डिनोट किया है, अलग एलिमेंट y से। नाउ स्टार्टिंग विद द प्रूफ, लेट इफ सपोज हमें प्रूव क्या करना है कि z इज नॉट ऑर्थोगोनल टू y, राइट, सॉरी z इज ऑर्थोगोनल टू y हमें प्रूव किया है। तो बाय कंट्राडिक्शन लेट इफ पॉसिबल व्हाट वी टेक इज z इज नॉट ऑर्थोगोनल टू y। अगर z ऑर्थोगोनल नहीं है y के, दैट मींस देयर वुड एग्जिस्ट अ y1 belonging to y such that this inner product is non-zero, right, and this inner product is non-zero implies y1 is not zero, क्योंकि अगर y1 0 हो जाता तो inner product 0 हो जाता, right. Now next we take as a, for any scalar alpha we consider this norm of z minus alpha y1 square, right। ये क्लियर होगा अल्फा हमने ये क्यों लिया है। so that is equals to norm of square, स्क्वायर ले लिया तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, that would be nothing but inner product of z minus alpha y1 and z minus alpha y1, right। जब इस इनर प्रोडक्ट को हम ओपन करेंगे, so we would have is norm of z square minus alpha bar times zy1 minus alpha times complete of inner product of y1z minus alpha bar y1 norm, right। तो जैसे हमने पीछे एक प्रूफ में किया था, इस एलिमेंट को अगर हमें जीरो लेना है,
So what we take is इस एलिमेंट को 0 कंसीडर करके अल्फा बार की वैल्यू अज्यूम करते हैं, राइट. सो अल्फा बार यहाँ से क्या आएगा, नॉर्म ऑफ y1z अपॉन नॉर्म ऑफ y1 स्क्वायर. एंड y1z के इनर प्रोडक्ट को कैसे लिख सकते हैं, z y1 का कॉन्जुगेट, राइट. तो हमने अल्फा को अज्यूम ये किया, अल्फा क्लोजर इज इक्वल, अल्फा कॉन्जुगेट इज इक्वल टू दिस. इफ वी डू दिस देन ये जो इक्वेशन थी, इस इक्वेशन को 1 दे देते हैं, देन इक्वेशन 1 जो है किसमें ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, दैट वुड बी नथिंग बट नॉर्म ऑफ z स्क्वायर एज इट इज. अल्फा कॉन्जुगेट की जगह हमने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है, राइट. इनर प्रोडक्ट z कॉमा y1 एज इट इज, एंड ये कंप्लीट ब्रैकेट वाली टर्म 0 हो जाएगी, राइट. So therefore we would be left with only norm of z square into, अब ये देखो क्या है, z into z bar वाली टर्म है, that would be mod z square upon norm of y1 square as it is, right. So therefore हमारे पास क्या आ गया, this is norm of z square. क्यों, क्योंकि delta was norm of x minus y, यहां से बताना है कि ये कैसे आया, ठीक है. ये था नॉर्म ऑफ z स्क्वायर माइनस समथिंग, एंड दिस ये माइनस समथिंग जो हो रहा है, दिस इज पॉजिटिव टर्म, राइट. मॉड्यूलस ऑफ स्क्वायर है अपॉन नॉर्म ऑफ समथिंग है, तो दिस इज पॉजिटिव टर्म, एटलीस्ट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है. सो देयरफॉर दिस होल टर्म में से अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो दिस होल टर्म वुड बी लेस देन इक्वल्स टू मॉड z स्क्वायर, नॉर्मल अलजेब्रा, right. And mod z square is less equal to delta square. Z कहाँ पे, z क्या है, x minus y. So norm of z square would be norm of x minus y square, and norm Yes, of x ma'am. minus y क्या था, delta. So this is equals to delta square. Equation 5 clear है, Yes, ma'am. ठीक है. Now z माइनस अल्फा y1 जो है, इसको हम x माइनस y2 भी लिख सकते हैं, बिकॉज y2 अगर एलिमेंट लिया हमने, y प्लस अल्फा y1, दैट वुड बिलोंग्स टू सबस्पेस y. y ऑलरेडी y में था, राइट. y1 भी y में था, तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन जो मैम, है, हाँ मैम एक चीज ये नहीं समझ में आया था, जब आपने ऊपर z माइनस अल्फा y1 क्यों लिया, एंड द सेकंड वन इज कि अभी आपने इसको इक्वल टू सम, ये कैसे लिख लिया. z माइनस अल्फा y1 क्यों लिया, ठीक है, वो आगे मैं क्लियर करूंगी इस आगे प्रूफ में. एंड सेकंड वाज, सेकंड वन ये कि z माइनस ऑल्सो के बाद ये आपने लिखा है ना, z माइनस अल्फा y1 इज इक्वल टू x माइनस y2, हाँ हाँ ये कैसे लिखा आपने. हाँ, मैं वही प्रूफ कर रही हूँ, अभी वही मैं क्लियर कर रही थी. देखो y एलिमेंट हमारे पास ऑलरेडी y में था, राइट. यस y1 भी y में था, एंड y Yes, कैपिटल y जो है एक सबस्पेस था. सो ये एलिमेंट अगर हम y2 से डिनोट कर रहे हैं, y प्लस अल्फा y1, ये y2 में बिलोंग करेगा, y में बिलोंग करेगा, y2, यस मैम. ठीक है. तो नेक्स्ट हमने यहाँ पे क्या किया, z माइनस अल्फा y1, इसको हमने x माइनस y2 की टर्म में कैसे लिखा, सिंस देखो जो z माइनस अल्फा y1 फैक्टर है, गॉट इट मैम, गॉट इट, समझ गया. जेड को ओपन करके लिखा है, देन आपने इस कंडीशन को यूज किया है. ठीक है, मैम z हमारा x माइनस y था ना. हाँ चलो. ठीक है, तो गॉट इट यहाँ मैम, से थैंक नॉर्म यू मैम. ऑफ z माइनस अल्फा y1 स्क्वायर वुड बी नथिंग बट नॉर्म ऑफ x माइनस y2 स्क्वायर, एंड दैट वुड बी इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू डेल्टा, क्योंकि डेल्टा क्या था, इंफीमम ऑफ x माइनस y बार, राइट. सो देयरफॉर यहाँ से क्या आया, नॉर्म ऑफ दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू डेल्टा स्क्वायर. इक्वेशन 6 से, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या प्रूव किया है, नॉर्म ऑफ z माइनस अल्फा आई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू डेल्टा स्क्वायर, right. Therefore we have that for all y belonging to y, this inner product should be 0. ये समझ आया. z अगर अल्फा y हम यहाँ पे लेते, फर्स्ट केसेस यहाँ पे क्या आता, इफ यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू डेल्टा स्क्वायर है, यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू डेल्टा स्क्वायर, अगर दोनों केसेस ट्रू होते, so that means
that should be equals to delta square, right? So that means, Yes, ma'am. so that means this norm of z minus alpha y1 का square that should be equals to delta square. So norm of z minus alpha y delta के equal आ जाता. Yes, ma'am. ठीक है. And norm of z minus y क्या होता सर? x minus y2, right? क्योंकि ये दोनों एलिमेंट सेम है. Yes, ma'am. यहाँ से क्या आता? norm of x minus y2 is equals to delta, right? लेकिन हम क्या प्रूव कर चुके हैं कि डेल्टा जब है इक्वल टू किसके केस में होता है? सिर्फ x माइनस वाई के केस में, जबकि y2 एक अलग एलिमेंट है. डेल्टा की वैल्यू क्या थी? नॉर्म ऑफ x माइनस वाई ना. दिस वाज इक्वल्स टू डेल्टा. यस मैम. एंड यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि नॉर्म ऑफ x माइनस y2 दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू डेल्टा and y is not equals to y2, right? y and y2 दो अलग एलिमेंट्स हैं. बट दोनों y के तो है ना मैम. नहीं, यहाँ पे हमने ये यूनिक y लिया था ना. अच्छा अच्छा, ओके ओके. द मीनिंग इज यूनिकनेस फेल हो जाएगी फिर. यूनिकनेस फेल हो जाएगी. इसीलिए कॉन्ट्राडिक्शन है, क्योंकि यूनिकनेस फेल हो जाएगी अगर ये कंडीशन होल्ड कर गई तो. ठीक है. इज इट क्लियर नाउ? यस मैम. ठीक है. यस मैम. ठीक है. कॉन्ट्राडिक्शन आ गई. सो दैट मीन्स जो हमने अज्यूम किया था कि ऑर्थोगोनल नहीं है, दैट वाज रॉन्ग. आवर अज्यूमशन वाज रॉन्ग. सो देयरफॉर z इज ऑर्थोगोनल टू y, and that means x minus y is orthogonal to y.